Vipin, the brother of the deceased Raja Raghuvanshi, has arrived in Shillong to pursue justice for his late sibling. Speaking to the media, Vipin stated that his primary purpose for visiting Shillong is to obtain Raja's death certificate. In addition, he wishes to review the post-mortem report to better understand the circumstances surrounding the death. Vipin further informed that he will be filing a petition in the Meghalaya High Court on Wednesday, strongly opposing the bail granted to the accused in the Raja Raghuvanshi murder case. He expressed deep disappointment over the release of 3 individuals: Lokendra Tomar, the flat owner in Indore, security guard Balbir, and property broker Shilom James. According to Vipin, the release has caused immense distress to Raja's family. He specifically pointed out that despite clear allegations against Shilom James for tampering with evidence, he was still granted bail. Vipin intends to raise this matter in court. Vipin also made serious allegations against Sonam's brother, Govind. He accused Govind of betraying their family's trust. On one hand, Govind expresses remorse for his sister's actions and claims to stand with us in the pursuit of justice. On the other hand, he secretly came to Shillong and appointed legal counsel for his sister Sonam and Raja Kushwaha. This duplicity is deeply hurtful, Vipin stated. He added, "Their family deceived us under the guise of marriage, and now Govind continues to inflict pain by working against us in secret." Vipin announced that he will be visiting Sohra on Wednesday, the site where Raja was murdered. There, he plans to hold a prayer ceremony for the peace of Raja's soul. He also expressed his heartfelt gratitude to the people of Sohra, acknowledging their significant role in helping uncover the truth in this case. Vipin appealed to them to continue supporting the family, not only in seeking the truth but also in ensuring justice is served. और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए आया था मैं। और खास बात ये थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है शिलोम जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी इसमें से सब में से एक है, जो इसने सारे साक्ष्य में उठाए, जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय में मिली है रतलाम में से, और लैपटॉप वहाँ से मिला है, और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 36 कारतूस थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे फ्लैट के अंदर से, और बाकी अन्य चीजें से जो उसे मिठाई थी वहां से फ्लैट में जला के, कपड़े हुए सोनम का बैग हुआ है, सब चीजें बहुत जलाई थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पे कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी, तो इसकी जमानत हुई है। जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल की बात उसमें कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत हुई थी, मेरी, तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच हम लगा रहे हैं उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाया है, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई है, इसलिए हम लगा नहीं पाया वो चीज हमारी। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कहीं से, कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है।
सोनम ने एक बार धोखा राजा को दिया है, वो मार के साइड में कर दिया। और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल को धोखा दे रहा मुझे। मुझसे कहा था भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील मैं खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, और राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, और सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए और राज के लिए दोनों के लिए वकील करता है। क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से, मुझसे बोल के आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उसके अंदर, मैंने क्यों रोका, मेरे को रोकूंगा उसको। मगर मेरे परिवार के पास में आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं क्या साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पीछे धोखा देके चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें यही है। तो गोविंद जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम और राज पुष्पा को छुड़ाने के लिए बाहर लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, उसमें सोनम का जो पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसने हवाले का पैसा काम करती है वो। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो है सोनम जो है हवाला काम करती थी, तो सोनम के खाते में करीब 30-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो इसीलिए गोविंद जो है, गोविंद रघुवंशी इसमें डर रहा है, तो वो पैसा मेरा डूब नहीं जाए, तो सोनम को छुड़ाने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। और राज पुष्पा जो है, राज पुष्पा के भी काम ये था, तो गोविंद कहीं डर रहा है तो उसका नाम ऊपर नहीं हो जाए, इसके लिए वो जल चाहता है इन दोनों को छुड़ाने के लिए। अच्छा, बात हुआ जैसे गोविंद रघुवंशी से बात हुआ कि आप आए थे कि या नहीं आए थे, कुछ मैंने गोविंद रघुवंशी को मैंने फोन लगा था, मैंने अभी शाम को मैंने गोविंद भी आपने बहुत गलत करा है, और आपको राज और सोनम के लिए वकील करना था, मैं बात कर लेता खाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं था, वकील करता था उसमें कभी। मगर आपने पीठ पीछे मुझे फिर धोखा मुझे दिया है, तो आज से जो है अपनी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, और आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आज के मुझे फोन बुलाना कोई बारे में ना, मैं आपको बुलाऊंगा मैं। तो गोविंद मुझे बोलता है भैया, बोले मैंने वकील नहीं करा, आप मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आप किससे शर्त लगा रहा हो, अब एक काम मुझे प्रूफ ला के दे दीजिए। अब मैं जिसका प्रूफ बताऊंगा पहले, मैं जिस वकील साहब से मिलकर आया, वो जिस वकील के वकील ने करा है, उनके साथ में एक वकील और जो था, उन सभी की बातें बता दूंगा मैं कभी, तो फिर मेरे में गोविंद अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ओपन करूँ इस नाम में, इसलिए क्या जो भी है गोविंद ने धोखा देते दिया है। अब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे चक्कर में जो है मैं किसी का नाम ओपन करूँ और उसको धोखे में रखूँ मैं भी। अच्छा गोविंद जी, एक बात और बताइए, ऐसा जिस तरह से जो पुलिस के तरफ से ये मोटिव समझ में आया कि उनका लवर था सोनम का, लेकिन अभी भी कोई तो ऐसा कारण होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसमें कुछ और भी कारण हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों है, पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है। तो सोनम रघुवंशी जो है, गोविंद की बहन जो है, वो राज पुष्पा से प्यार करती थी, और आज वो सोनम ने दोनों जुर्म कबूल करा है। तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे प्रेमी है, वो दोनों ने इसकी राजा को मारा है, क्योंकि सोनम चाहती थी उसके बाप को सबक सिखाने के लिए। कि सोनम ने क्या है, शादी के पहले जो है उसके बाप से कह दिया था, तो मैं राजा से शादी कराऊंगा कभी, तो राजा को मार डालूंगी मैं, तो इसका अंजाम जो है तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि गोविंद ने और गोविंद के पिताजी, गोविंद की मम्मी जो है, और गोविंद की वाइफ, इन चारों सामने जो है सोनम ने कहा था। उसके बाद भी जो है पुलिस ने आज तक जो है इन आरोपी को, जो चारों को जो है घर में जो है किसी से पूछताछ नहीं की गई है। अब पुलिस तो खुद ने जो जांच करी, जांच में खुद ने पुलिस ने कहा है, तो सोनम ने जो है उसके पिताजी को और उसके परिवार को जो है सबक सिखाने के लिए राजा को मारा है। इतना बड़ा मोटिव जो सोनम मुझसे खुद बोल रही है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस इनसे जांच क्यों नहीं कर पा रही है, इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर सकती, पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के काम में कुछ ढीलपुल हो रही है, इसका फायदा जो है गोविंद के परिवार से उठा रहा है। अच्छा, शुरुआत में आपने ये कहा था कि आपका बयान आया था कि आप पर्सनली सोनम से मिलकर जानना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी सोनम से एक बार मिलना चाहते हैं? नहीं, देखिए अब मेरा सोनम से मिलने का मन इसलिए कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से गोविंद जो है मेरे साथ 2 महीने रहने के बाद मुझे धोखा दे रहा है, तो सोनम तो 4 दिन रह के घर गई थी, तो वो कितना धोखा दे सकती है। तो उसकी बात में सत्य तो मुझे मिलना ही नहीं है, पर यही है, तो उसको देख के जो मेरी आत्मा जलेगी मेरी, मेरे भैया को मारने वाली लड़की जो है मेरे सामने खड़ी, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो क्या नहीं चाहूंगा मैं। अच्छा, तो क्या आप अब जैसे आए हैं यहाँ पर, तो अभी भी सोहरा जाना चाहेंगे? सोहरा में कुछ आपका कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं, देखिए मैं सोहरा में जो है, मैं सोहरा जाऊंगा मैं, और सोहरा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो एसआई साहब जो है उनसे मिलूंगा भी जाके मैं, और जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे जाके जो है मैं, जहाँ की बॉडी निकाल के ऊपर जो रखी जिन लोगों ने थी, वहाँ मैं चाहूंगा मैं वहाँ जाके, तो वहाँ पूजा पाठ करूँ जाके मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो राजा के हाथ में कहीं ना कहीं भटक रही है, तो मैं वहाँ जाके पूजा पाठ करना चाहूंगा।
अच्छा, जिस तरह से आप तो कानूनी बात तो छोड़ दीजिए सोनम का, लेकिन आप एक ही बात बताइए कि मेघालय, पूरा इंटर मेघालय का ऊपर जो दाग लगा था जिस तरह से, क्या अभी भी आपको मेघालय से कोई शिकायत है? नहीं, देखिए, मुझे मेघालय से कोई शिकायत नहीं है, मेघालय सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी पब्लिक से शिकायत मेरी। पर मेरा मन इसके दुखता ज़्यादा है, तो यहाँ मेघालय में इतना बड़ा कुछ हो गया है, मेघालय को जिसने बदनाम करा है, जिसकी लड़की के कारण बदनाम हुआ है, जिस लड़कों के कारण बदनाम हुआ है, और उसी प्रकार से जो है प्रशासन द्वारा जो है और इसमें उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और उनको जमानत के लिए जो है जिसमें छूट मिली जा रही है और यहाँ के लोकल व्यक्ति द्वारा जो है इसमें जमानत भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, तो जिस लड़की ने उस लड़के ने जो है इतना कुछ करा है मेघालय को बदनाम करने के लिए और उस प्रकार से उन लोगों को सपोर्ट हो रहा कभी, तो कहीं ना कहीं देखिए राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा इसमें है। और मेरी हाथ जोड़ के पूरे मेघालय सरकार से और मेघालय की पब्लिक जो है इन सभी से मेरी विनती मेरी ये है, तो आप लोग चाहोगे कभी तो सोनम और राज कुशवाहा जो है कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप लोग कभी राजा को इंसाफ लाना नहीं चाहोगे कभी, तो ये लोग आज नहीं कल बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। और आज ऐसा जो हुआ है इसी प्रकार से आगे जो है आरोप बढ़ते जाएंगे और लड़कियों से जो है लोगों को भरोसा टूटते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो मेरे साथ खड़े रहिए और मैं चाहूंगा तो कल जो है जब मैं